کثیر لسانی ہندوستان میں اردو کی عظیم تہذیبی روایت. اس پروگرام میں ہم نے جن لوگوں کو مدعو کیا ہے وہ سب اپنے فیلڈ کے ماہرین ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام میں اس ٹاپک پر ایک دلچسپ گفتگو سننے کو ملے گی. ہمارے مہمان پروفیسر چندر شیکھر، جن کا تعلق پرشین ڈپارٹمنٹ دلہی یونیورسٹی سے ہے، نہایت معتبر نام، بہت اچھے ادیب، وہ اس پروگرام میں شریک ہیں. اس پروگرام میں ایک اہم دانشور، ماہر تعلیم پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین تشریف رکھتے ہیں. میرے ہمدم، میرے دوست، آتھر، ٹرانسلیٹر، بہت اچھی آواز کے جادوگر دیویش ورما تشریف رکھتے ہیں. اور پروفیسر دانش اقبال، ان کا تعارف تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کئی چیزوں کے ماہر ہیں. یہ ڈرامہ نویس بھی ہیں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، اور ڈائریکٹر بھی ہیں. ان تمام مہمانان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. اس موقع پر میں این بی ٹی کی جانب سے اپنی چیف ایڈیٹر اینڈ جوائنٹ ڈائریکٹر محترمہ نیرا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مہمانان کا آنر تحفے کے طور پر کریں. پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، پروفیسر چندر شیکھر، پروفیسر دانش اقبال، شکریہ میم. چونکہ ہمارے درمیان میں 4 لوگ ہیں، چاروں اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، اس موقع پر ان کے درمیان حائل ہونا بہت مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو جو شیڈول کیا، جو ڈیوائز کیا ہے، وقت کی ایک قید ہے. چاہوں گا کہ اس میں حائل بنوں. میں براہ راست مزید کارروائی کو وہ آگے بڑھائیں. جی بہت شکریہ نوازش کرم، مہربانی. اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے شرکا کا بھی تعارف کرا دیا تھا. تو میرا زیادہ تر کام تو آپ کر ہی چکے ہیں، اس لیے ہم براہ راست موضوع پہ آ جاتے ہیں. تو آپ سب کا خیر مقدم ہے اس سیشن میں بھی اور اس کتاب میلے میں بھی. اور میلے پہ مجھے ایک نظم یاد آتی ہے، ابن انشا کی بہت مشہور نظم ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن آپ کی یاد میں چاہوں گا کہ تازہ ہو جائے. اور میں خود کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور اسی میلے میں آتا تھا اور یہاں سے کتابیں خرید کے لے جاتا تھا. ہر سال میں لے جاتا ہوں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ جب میں وہ کتابیں لے کے گھر جاتا ہوں تو بیوی بتاتی ہیں کہ آپ پچھلے سال بھی یہی کتابیں لے آئے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میلے سے ہمارا بہت لمبا رشتہ ہے. تو ابن انشا یاد آتے ہیں، اور ان کی ایک نظم ہے جو میلے پہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو جو اردو تہذیب اور ثقافت ہے اس کی ایک جھلک آپ کو اس میں نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں جن دنوں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ہر ایک شے پر مگر جیب خالی تھی کچھ مول لے نہ سکا، لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا میں جن دنوں.
خیر خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے، آج میلہ لگا ہے اسی شان سے، آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں، آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں، نہ رسائی کا اب دل میں دھڑکا کہاں، پر وہ چھوٹا سا الڑ سا لڑکا کہاں۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہ چھوٹا سا الڑ سا لڑکا کافی بزرگ ہو گیا ہے، دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے لیکن اندر وہی بچہ ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سبھی کا اس میلے سے اور اس تہذیب سے اور اردو کی تہذیب سے ایک لمبا تعلق رہا ہے۔ خاص طور سے میں شروعات ادھر سے کرنا چاہوں گا دیویش ورما صاحب، کہ کسی زمانے میں یہ جے این یو میں ہوا کرتے تھے اور اسی میلے میں میری طرح سے ہی آتے تھے، اور دنیا بھی ایک میلہ ہے، آپ جانتے ہیں، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، دیویش ورما ضرور ہوں گے جی۔ تو اوور ٹو دیویش ورما جی۔ ہیلو، شکریہ دانش صاحب۔ سب سے پہلے میں نیشنل بک ٹرسٹ کے ڈاکٹر شمس اقبال کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اس خاک نشین کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ جیسا کہ آج کا موضوع ہے اور ہم سب بھی کما حقہ واقف ہیں کہ ہمارا ملک متعدد لسانی اور ادبی روایتوں کا گہوارہ رہا ہے، اور یہ کہ ان روایتوں میں اردو زبان و ادب کی روایت کی اپنی ہی دھج ہے، اپنا ہی رنگ ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں اردو کلچر کی کسی نہ کسی انداز کی نقش گری نظر آتی ہے، خواہ وہ سینما ہو یا رقص و موسیقی کی روایت یا پھر دوسرے فنون، سب میں اردو ثقافت کی دھنک جلوہ گر ملے گی۔ یہ موضوع اتنا اہم اور بڑا ہے کہ میرے جیسی محدود صلاحیت والے شخص کے لیے اس پر زیادہ کچھ کہہ پانا بڑا کٹھن ہے۔ اس پر آپ آگے چل کر پروفیسر خواجہ اکرام الدین اور پروفیسر چندر شیکھر کی عالمانہ اور قیمتی گفتگو سنیں گے۔ میں تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے اردو کی 2 نظمیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ جو نظمیں، ان نظموں میں اردو تہذیب و ثقافت کا رنگ گہرا ہے، اور یہ نظمیں مقامی حوالوں سے مالا مال ہیں ایک طرف، وہیں دوسری طرف ان میں آفاقیت کی بھی گونج سنائی پڑتی ہے۔ اور یہ نظمیں ہیں ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر اور باز آمد۔ واہ واہ۔ ان کے تخلیق کار ہیں اختر الایمان۔ اختر الایمان جدید اردو نظم کے بنیاد گزار میں سے ہیں اور نظم کے بڑے شاعر ہیں۔ تو میں پہلے ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر جی پیش کرتا ہوں جی جناب۔ جی۔ کتاب تو چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جب سناتے ہیں تو وہ سب کچھ ہم کو دکھنے لگتا ہے، وہ پورا منظر نامہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی محنت سے اسکرین پلے لکھتے ہیں، اس کے بعد ایکٹرز کو سمجھاتے ہیں، میوزیشینز کو سمجھاتے ہیں، یہ اکیلے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کو نظم سنائیں گے اور وہ سارے منظر جو ہیں، بلکہ کہنا چاہیے مناظر جو اس نظم میں ہیں، جو کردار ہیں، جیسے جو مسافر آتا ہے اور جس سے بات کرتا ہے، وہ سب کچھ ان کی پرفارمنس میں آپ کو نظر آنے والے ہیں۔ آپ جہاں سے پسند کریں، یہاں سے آپ پورے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ ادھر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ جی 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 جی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ ڈاسنا ہے صاحب جی، آپ کو اترنا ہے؟ جی نہیں نہیں، لیکن ڈاسنا تو تھا ہی وہ، میرے ساتھ قیصر تھی یہ بڑی بڑی آنکھیں، ایک
तलाश में खोई, रात भर नहीं सोई, जब मैं उसको पहुंचाने इस उजाड़ बस्ती में साथ लेके आया था। मैंने उनसे फिर पूछा, आप मुस्तकिल शायद दासना में रहते हैं? जी, यहाँ पे कुछ मेरी सूद की दुकानें हैं, कुछ ताम खाने हैं। मैं सुना किया बैठा बोलता रहा वो शख्स, कुछ जमींदारी है, मेरे बाप दादा ने कुछ मकान छोड़े थे, उनको बेचकर मैंने कारोबार खोला है। इस हकीर बस्ती में कौन आके रहता था, लेकिन अब यही बस्ती बम्बई है, दिल्ली है। कीमतें जमीनों की इतनी बढ़ गई साहब, जैसे ख्वाब की बातें। एक जमीन ही क्या है, खाने पीने की चीजें, आम जीने की चीजें, भाव 10 गुने हैं अब। बोलता रहा वो शख्स, इस कदर गिरानी है, आग लग गई जैसे, आसमान हद है बस। मैंने चौंक कर पूछा, आसमां महल था एक सैयदों की बस्ती में? आसमान ही नहीं साहब, अब महल कहाँ होगा। हंस पड़ा ये कहकर वो, मेरे जहन में उसकी बात पै बपै गूंजी, अब महल कहाँ होगा। इस दियार में शायद कैसर अब नहीं रहती, वो बड़ी बड़ी आंखें अब न देख पाऊंगा। मुल्क का ये बंटवारा ले गया कहाँ उसको। देवढ़ी का सन्नाटा और हमारी सरगोशी, मुझसे कितने छोटे हो। मैंने कुछ कहा था फिर, उसने कुछ कहा था फिर, है रकम कहाँ वो सब। दर्द की गिरा जानी, मेरी शोला अफशानी, उसकी जलवा सामानी, है रकम कहाँ वो अब। करबे जीस्त सब मेरा, गुफ्तगू का ढब मेरा, उसका हाथ हाथों में लेके जब मैं कहता था, अब छुड़ाओ तो जानू, रस्म बेवफाई को आज मोतबर मानूं। उसको लेके बाहों में झुक के उसके चेहरे पर भींच कर कहा था ये, बोलो कैसे निकलोगी मेरी दस्तरस से तुम, मेरे इस कफस से तुम। भूरे बादलों का दल दूर उड़ता जाता है, पेड़ पर कहीं बैठा एक परिंद गाता है। चिलचिल एक गिलहरी की कान में खटकती है, रेल चलने लगती है, राह के दरख्तों की छांव ढलने लगती है। मुझसे कितने छोटे हो, और मेरी गिरां गोशी, देवढ़ी का सन्नाटा और हमारी सरगोशी, है रकम कहाँ वो सब। दूर उस परिंदे ने अपना गीत दोहराया, आज हमने अपना दिल खून किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया। वाह 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 वाह, बेहतरीन नज्म। और आप देखिए कि वो फिल्मों में काम करते थे और कहानियां लिखते थे, स्क्रीन प्लेज लिखते थे, साथ में शेर कहते थे, नज़में लिखते थे। और ये जो नज्म है ये एक तरह का स्क्रीन प्ले भी है। आप देखिए कि इसमें दो किरदार बातें करते हैं और जो गुफ्तगू हो रही है वो बहुत आसानी से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब इस वक्त जो नज्म का माहौल है वो पार्टीशन के बाद का है, वो जगह उजड़ चुकी है, वो माहौल ख़त्म हो चुका है, आसमां महल अब नहीं है, कैसर अब नहीं है, लेकिन एक मुसाफिर है और वो मुसाफिर कभी वहाँ आता था, एक दूसरा मुसाफिर है जो अब वहीं रहता है। दोनों की गुफ्तगू, उसके साथ आप देखिए कि गिलहरी से लेके चिड़िया और ट्रेन के बाहर के जो मंजर हैं बदलते हुए, मैं समझता हूँ बहुत आसानी से इसको एक फिल्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बल्कि मैं क्यों कह रहा हूँ किया जा सकता है, देवेश वर्मा ने कर दिया। जब आप इसको सुन रहे थे तो वो सारे मंजर आपको नजर आ रहे थे। बेहतरीन नज्म और बेहतरीन नज्म की बेहतरीन पेशकश के लिए देवेश साहब यकीनन हमारी तहसीन के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। ये बहुत अजीब इत्तेफाक है कि ये नज्म जिस माहौल की अक्कासी करती है उसकी आगे भी हम बात जारी रखेंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर के तवस्सुस से भी। लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन की जानिब
आना चाहूँगा, जिनको एक बहुत लंबा तजर्बा है दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़, तालीम से मुताल्लिक़ और तहज़ीबी जो मशागिल हैं उनसे मुताल्लिक़। बहुत लंबा तजर्बा इस तरह से कि जो हमारा मशरक़ी हिंदुस्तान है और जो हमारा शुमाली हिंदुस्तान है, वहाँ से लेके जनूबी हिंदुस्तान तक आपने सफ़र किए, आपने काम किया। नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के सरबराह के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं ने तरसीली कामों का, तदरीसी कामों का एक जाल बिछाया। तो मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर इंसान यहाँ पे ढूंढना इस महफिल में, जिसकी इतना तजुर्बा हो और इतनी गहराई के साथ उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों को देखा हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी मौजूदगी से हमको इस्तिफादा करना चाहिए। और आज का जो मौजू है कि कसीर लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू की जो अजीम रवायत है, तो देखिए जो रवायत है बंगाल, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, इसके बाद यूपी, बिहार और पंजाब और कश्मीर, अब देखिए बहुत सी ज़बानें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू भी मौजूद है, उर्दू की तहज़ीब भी मौजूद है और एक अजीम तहज़ीबी रवायत भी मौजूद है, जो मुझे लगता है कि अभी आपकी गुफ्तगू के ज़रिए हमारे सामने आएगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। सामीन, ये बहुत ही अहम मौजू है और कल भी इस मौजू पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन ये तहज़ीबी रवायात क्या है और अजीम तहज़ीबी रवायत क्या है, ये हमें जानना चाहिए। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में कई एतबार से शनाख्त हासिल है, कई एतबार से। उनमें दो बड़े एतबारात हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। एक है हिंदुस्तान की अजीम तहज़ीबी रवायत और दूसरा है हिंदुस्तान की कसीर लिसानी रवायत। अच्छा, इस कसीर लिसानी रवायत में सारी ज़बानों की बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो करीब करीब ज़बानें हैं, अगर हिंदी और उर्दू को लीजिए, इसके अलावा आप तमिल को लीजिए, मलयालम को लीजिए, मराठी को लीजिए, सारी ज़बानों को, सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि इतनी ज़बानें हों और वर्ल्ड लिटरेचर में उनका बहुत ही आला मुकाम हो, ये सीरियस लिटरेचर उसमें पाया जाता हो। ये हिंदुस्तान की तहज़ीबी लिसानी रवायत का एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए तमगा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब रही बात कि वो कौन सी तहज़ीबी रवायत है जिसकी वजह से ये ज़बानें इतनी दौलतमंद हो गई, इतनी सरवतमंद हो गई और इतनी रिच हो गई, वो कौन सा तहज़ीबी सरमाया है। तो आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के तहज़ीबी सरमाए में और इसकी झोली में इतना कुछ है कि जहां भी आप जाएं एक समंदर की तरह, कि साहिल के किनारों पे चलते चले जाएं, हर साहिल पे लगेगा, हर बीच पे ऐसा लगेगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। कभी हिंदी के पास चले जाएं तो ऐसा साहिल मिलेगा कि आप उसमें डूबते चले जाएं, उर्दू के पास चले जाएं, बंगला के पास चले जाएं, सारी ज़बानें अपने अंदर ऐसी सरवतमंदी रखते हैं, वो तहज़ीबी सरवतमंदी। अच्छा, वो तहज़ीबी सरवतमंदी है क्या? तो याद रखिए कि हिंदुस्तान में जिसको हम रंगारंग तहज़ीब कहते हैं, वो तहज़ीब क्या है? अगर एक लफ्ज़ों में कहना चाहें इकबाल साहब, तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है उसका एक ही पॉइंट है कि पुरअमन बकाए बाहिमी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को लेकर के पूरी हमारी अदब की दुनिया कायम है। अच्छा, इस अदब की दुनिया में अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू ने भी उसी तहज़ीबी लिसानी रवायत को आगे बढ़ाया है। और उर्दू में ख़ास बात यह है कि आपको मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, अमन का पैगाम मिलेगा, और हिंदुस्तान की जिस सभ्यता को देखना चाहें, जिस कल्चर को देखना चाहें, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ अदब में मिलेंगी देखने के लिए। यहाँ आपको अगर कुतुब मीनार की तबालत और उसकी अजमत मिल रही है, लाल किला की शान और शौकत मिल रही है, तो अजंता एलोरा की खुशबू भी आपको मिलेगी, यहाँ नाकूस भी मिलेगा और अजान भी मिलेगी। यही तो ख़ास बात है जो उर्दू इस मोहब्बत के धारे को लेकर चल रही है। अब अगर आप गौर करें कि उर्दू के पूरे तख्लीकी अदब में, तख्लीकी अदब इसलिए कि तख्लीकी अदब में जितनी गुंजाइश होती है आम अदब में नहीं हो रही, क्रिएटिव राइटिंग में। तो आप फिक्शन ले लीजिए, शायरी ले लीजिए, आप ये देखिएगा कि तमाम तर हिंदुस्तान की झलकियाँ यहाँ मौजूद हैं, और इस तरह से मौजूद हैं कि अगर उर्दू का कोई शेर पढ़ें खुसरो के ज़माने से, खुसरो और वो कबीर की पूरी रवायत, जब ये खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वहां का धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार।
اب یہ دیکھیے یہ محبت کی وہ نرالی دنیا ہے یہ جہاں تانے لیتے ہیں. اور اسی کو کبیر نے آگے بڑھا کے کہا ہے کہ جن ڈھونڈا تن پائیاں گہرے پانی پائے, جن ڈھونڈا تن پائیاں گہرے پانی پائے, میں بوری ڈھونڈن گئی رہی کنارے بیٹھ. اور یہ محبت کا وہ عالم ہے جس کو آگے چل کر کے میر نے یہ کہا. اور یہی محبت کی وہ داستان ہے جو زبانوں میں آپ کو ملے گی کہ عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو, عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو, دیکھیے جی. سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. واہ واہ. تو اب یہ دیکھو کہ یہ عشق کا وہ منظرنامہ ہے اور اسی عشق اور محبت پر یہ پوری ادب اور پورا داستان یہاں کھڑا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ میر کا وہ شعر کہ میں نے کہا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کہ اس کے فروغ حسن سے جھمکے سب میں نور, اس کے فروغ حسن سے جھمکے سب میں نور, شمع حرم ہو یعنی مسجد کا وہ چراغ ہو یا سومناتھ کا, شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا, یعنی مندر میں بھی وہی چراغ جل رہا ہے اور مسجد میں بھی وہی چراغ جل رہا ہے. اور اسی روشنی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا کوئی مکان نہیں ہوتا. اور یہی اردو تہذیب ہے جس کو ہندوستانی تہذیب کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک جھلک ہے لیکن اور بہت ساری جھلکیں ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے گفتگو میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کی تفصیل بیان کی, اس بات کو ثابت کیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اردو محبت کی زبان ہے تو اردو تصوف کی زبان ہے, اردو صوفیہ کی زبان ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ صوفیہ کی جو روایت ہے دکن سے لے کے اور بنگال سے لے کے اور پنجاب سے لے کے صوبہ سرحد تک دیکھیں تو وہاں اس زمانے میں بھی مختلف زبانیں بولی جا رہی تھیں. اور صوفیہ کی کوششوں سے ایک نئی زبان کا ایک آموزش ہوئی اور امتزاج ہوا. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تحقیق کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا, محبت کی زبان کس طرح سے بنی. لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے زبان کے پروان چڑھنے کا اور کس طرح سے اس کو فروغ حاصل ہوا, جس پہ ابھی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے. اور اس کا میں حوالہ یہ دینا چاہوں گا کہ سلطنت پیریڈ میں یعنی کہ جب ترکی زبان بولی جاتی تھی درباروں کے اندر, جو کہ امیر خسرو کا دور تھا, اور اس کے بعد ترکی جو ہے وہ صرف محل کے اندر کی زبان رہ گئی اور فارسی درباروں کی زبان ہو گئی. اس دور سے لے کے مغل دور سے لے کے اور برٹش پیریڈ تک جو ہماری بیوروکریسی تھی وہ ہمارے جو کائست برادری ہے ان کے ذریعے, یعنی آپ یہ سمجھیے کہ وہ ایک رابطے کا کام کر رہے تھے. جو لوگ پاور میں تھے, جو پولیٹیکل کلاس تھا اور جو عوام تھے, اس کے بیچ میں بیوروکریسی کا جس طرح سے کام ہوتا ہے. اور تو کائست برادری میں جو علمیت کی اور جو دانشوری کی ٹریڈیشن ہے اس کے کیا کہنے ہیں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور اس روایت کے ایک ترجمان پروفیسر چندرشیکھر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جن کے میں سمجھتا ہوں کہ کئی پشتوں سے آپ کا سلسلہ اردو تہذیب اور اردو کی ثقافت اور اردو کی ادب سے رہا ہے. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈاسنا اسٹیشن کی, تو اس دور کی بھی باتیں ابھی آپ کے حوالے سے ہمارے سامنے آنے والی ہیں. میں آپ کے تعارف کے طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف ہندوستان میں نہیں, ہندوستانی تہذیب اور اردو تہذیب کو سینٹرل ایشیا سے لے کے ٹرکی سے لے کے ایران تک اور کم سے کم 14-15 ممالک تک پہنچانے کا آپ نے کام کیا. اور ایک زمانے سے آپ زیادہ تر دوسرے ملکوں میں رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی موجودگی سے ہم کو کافی کچھ جاننے کا موقع ملنے والا ہے. جی شکریہ دانش صاحب, شکریہ بھائی شمس کا. آج ان کی زیارت بھی بہت سالوں بعد ہوئی. پہلے یہ نیشنل بک ٹرسٹ سے NCPL چلے گئے تھے اور واپس خوشی ہے کہ نیشنل بک ٹرسٹ میں آ گئے. جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہی ایک تاریخی مقام ہے, پیچھے پرانا قلعہ ہے. جو لوگ قطب مینار سے چاہے وہ میٹرو میں بیٹھے ہیں اور دلی یونیورسٹی تک جائیں تو
1000 साल की तारीख तय करते हैं। ये 1000 साल की तारीख में कितनी हुकूमतें बदली, उनके गवाह उन किलों के खंडरात हैं। चाहे आप कुतुब मीनार से लीजिए, हौस खास आइए, तुगलकाबाद आइए, उससे जो किलो खिड़ी का जहाँ पे सिर्फ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन गया है वो रह गया। आ गया ये पुराना किला है, थोड़ा सा बढ़िए फिरोज तुगलक का किला है। फिर आगे चलिए सलीमगढ़ जो लाल किले ने अपनी छाँव में ले लिया, और लाल किले से आगे चलिए अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत कायम की। और जो मिस्रा है, बादशाह नोमी आयद मस्जिद नोमी सल्लत। एवरी किंग मेक्स हिज ओन कैसल। लेकिन इन सबके साथ आप लोग साफ़ी भी हैं, और खुशकिस्मती से मैं एक साफ़ी का बेटा हूँ। कश्मीर से लेकर और एटलीस्ट मद्रास तक अगर किसी ज़बान में, एक वाहिद ज़बान में अखबार छपते रहे हैं तो वो सिर्फ उर्दू है। इतना बड़ा वसी दामन उर्दू ज़बान का, उसकी कसीरुल लिसानी होने के साथ साथ वाहिद ज़बान है जो कि लिंग्वा फ्रैंका के तौर पर रही है। बाज़ लोगों का मानना है कि पार्टीशन के साथ उर्दू ज़बान हमारे पड़ोसी मुल्क में चली गई। खुशकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। 2002 में तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड फॉर्मेशन पे। एक ईरानी मोहतरमा अपना पेपर लिख के लाई, उसमें शायर का मुअन्नस था शायरनी। मैं घबराया, मैंने कहा शेर से शेरनी तो सुना था, शायर से शायरनी नहीं सुना था। मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से उर्दू पढ़ी है। उसने मुक्तदरा जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है उसकी वो किताब लाई। उसने कहा सनद ये है, मैंने कोई अपने आप क्वाइन नहीं किया। और मुख्तदरा का मतलब होता है अथॉरिटी। यहाँ पे इसमें भी एक आयरनी है, अथॉरिटी कि उन्होंने शायर से शायरनी बना दिया। तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले ऐवान गालिब में हमारे मरहूम प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जो ऑफिशियल तकरीर है उसको तो एक तरफ रख देता हूँ और अपने दिल की बात कहता हूँ। और उन्होंने लिखाड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया। लिखारी के लिखाड़ी, लिखाड़ी, लिखाड़ी। हाँ देखिए ये ऐसे ही है, इसमें अड़े पे हाँ, मतलब ज्यादा जोर है। उसी तरह से है। अड़े बड़ा इम्पोर्टेंट साउंड है। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ पे जब सिपाही भर्ती होता था तो उससे बुलवाया जाता था कोड़ा। कोड़ा अगर कोई घोड़ा बोल देता था तो उसको नहीं लेते थे। तो उर्दू जबान जो है आई बेशक मुख्तलिफ बैरूनी कौमों के साथ साथ, लेकिन पली बढ़ी इसी मट्टी में अगर हिंदुस्तानी ज़बानों में मिठास ना होती तो उर्दू में मिठास ना होती। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब जी। और हमारी ये जो कसीर लिसानी है, कुछ साल पहले इस्तांबुल में था मैं, तो वहाँ एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि वहाँ पे कुर्दी ज़बान के ऊपर झगड़ा चल रहा था कि हमें हिंदुस्तान से सबक लेना चाहिए। और देखिए उनके नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर कितनी ज़बानें हैं। तो उर्दू हमारी ऐसी ज़बान है, बल्कि ऐसी तहजीब है। मैं सोच रहा था कि तहजीब का अरबी उससे क्या जमा बन सकती है। तहजीब हो नहीं सकता, तो मैंने कहा तहजीबों ही करिए कि ये खाली एक वाहिद रह गई, क्यों ना हमने इसको
प्लूरल की शक्ल में इस्तेमाल किया। वाह, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम एक ही तहजीब, एक ही वाहिद लफ्ज में तमाम चीजें आके मिल गई, और उसका नाम है उर्दू। वाह वाह, बहुत खूब। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आपने जो आसार कदीमा, बल्कि कहना चाहिए आसार जदीदा हैं, वो आज तो बिल्कुल शामिल हो चुके हैं। इस वक्त जो हमारा शहर है, आपने किस तरह से उसका पूरा मंजरनामा आपके सामने पेश किया। उसके साथ साथ हमारी खुशकिस्मती है, बल्कि आपकी भी, कि महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ रहा है। तो आप ये समझिए कि जो पंजाब का पूरा तहजीबी जो मंजरनामा है वो भी आपकी नज़र में है। और उसके बाद चूँकि आप मुख्तलिफ ममालिक में रहे, और जैसा कि आपने सुना कि इस्तांबुल से लेकर तेहरान तक कहाँ कहाँ पे आपको मतलब उर्दू तहजीब से मुतालिक बहुत से चमकीले रोशन लम्हे आपको नज़र आते हैं। वो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत खुश आइंद हैं। तो चलिए एक बार फिर हम वापस लौटना चाहेंगे नज़मों की दुनिया में, शायरी की दुनिया में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवेश जो हैं ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। और एक बार ये दिलीप कुमार के पास गए और दिलीप कुमार इनसे मिल के हैरत ज़दा रह गए। अब आप सोचिए कि ये दिलीप कुमार से मिले और दिलीप कुमार हैरत ज़दा रह जाएं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये उस नज़्म का ज़रूर हवाला देंगे, लेकिन चूंकि इन्हीं ने नहीं दिया तो मुझे मौका मिल गया अब उस नज़्म के बारे में बात करने का। अख्तरुल ईमान की बहुत मशहूर नज़्म है एक लड़का। देवेश जेएनयू में पढ़ रहे हैं और दिलीप कुमार आए हैं। वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा, उनको कोई बड़ा अवार्ड मिला था जो जोर था कि ना लें वगैरह वगैरह। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी से शायद मिलने आए थे, जब आप उनसे मिले थे, वही पीरियड था, उससे पहले वाला था। तो ये उनके पास गए और उनके दोस्त थे अख्तरुल ईमान, और इन्हीं ने अख्तरुल ईमान की नज़्म ऐसे सुना दी कि वो बिल्कुल हैरत ज़दा रह गए। तो अब यहाँ पे हम उस नज़्म को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ हिस्से हिंदुस्तान की तहजीब और कसी लिसानी हिंदुस्तान की जो अजीम तहजीबी रवायत है, उसका जो इब्तिदाई हिस्सा है वो बहुत आपको याद दिलाएगा। वो कहते हैं, दयारे शर्क की आबादियों के ऊंचे टीलों पर, अब देखिए, दयारे शर्क की आबादियों के ऊंचे टीलों पर, कभी आगे आगे चले ना आप, कभी आमों के बागों में, कभी खेतों की मेंढों पर, कभी बस्ती की गलियों में, कभी कुछ नीम उरियां कम सिरों की रंग रलियों में, सहर दम झुटपुटे के वक्त रातों के अंधेरे में, कभी मेलों में नाटक टोलियों में उनके डेरे में, ताकुब में कभी गुम तितलियों के सूनी राहों में, कभी नन्हे परिंदों की नहिफ्ता ख्वाब गाहों में, बरहना पाँव जलती रेत यख बस्ता हवाओं में, गुरेजा बस्तियों से मदरसों से खानकाहों में, कभी कमसिन हसीनों में खुश कामो दिल रफ्ता, कभी पेचा बगूला सा, कभी यूं चश्मे खूं बसता, फजा में तैरता ख्वाबों में बादल की तरह उड़ता, परिंदों की तरह शाखों में छुप कर झूलता मुड़ता, मुझे एक लड़का आवारा मनिश शादाद सैलानी, मुझे एक लड़का जैसे तुंद चश्मों का रवां पानी नजर आता है, यूं लगता है जैसे ये बलाए जां मेरा हमजाद है, हर गांव पर हर मोड़ पर जौला इसे हम राह पाता हूं, ये साये की तरह मेरा ताक़ुब कर रहा है, जैसे मैं मफरूर मुल्जिम हूं ये मुझसे पूछता है, अख्तरुल ईमान तुम ही हो, खुदाए अज़्ज़वजल की नेमतों का मोतरफ हूं मैं, मुझे इकरार है उसने ज़मीं को ऐसे फैलाया कि जैसे बिस्तरे कम ख्वाब हो दीबाओ मखमल हो, मुझे इकरार है ये खैमे अफलाक का साया उसी की बख्शिशें हैं, उसने सूरज चांद तारों को फजाओं में सवारा, एक हदे फासिल मुकद्दर की चटाने चीर कर दरिया निकाले खाके अस्फल से, मेरी तख्लीक की मुझको जहां की पासबानी दी, समंदर मोतियों मूंगों से, काने लालो गौहर से, हवाएं मस्तकुन खुशबुओं से मामूर कर दी हैं, वो हाकिम कादर मुतलक है, यकता और दाना है, अंधेरे को उजाले से जुदा करता है, खुद को मैं अगर पहचानता हूं उसकी रहमत और सखावत है, उसी ने खुसरवी दी है लईमों को मुझे नकबत, उसी ने यावा गोयों को मेरा खाजिन बनाया है, तवनगर हिर्जकारों को किया तरियूज अगर मुझको, मगर जब भी किसी के सामने दामन पसारा है, ये लड़का पूछता है
अख्तरुल ईमान तुम ही हो। मईशत दूसरों के हाथ में है, मईशत दूसरों के हाथ में है, मेरे कब्जे में जुज़े के ज़हने रसा कुछ भी नहीं, फिर भी मगर मुझको खरोशे उम्र के इत्माम तक एक बार उठाना है, अनासिर मुंतशिर हो जाने नब्ज़े डूब जाने तक, नवाए सुबह हो या नाले शब कुछ भी गाना है, जफरमंदों के आगे रिस्क की तहसील की खातिर कभी अपना ही नगमा उनका कहकर मुस्कुराना है। कभी जब सोचता हूं अपने बारे में तो कहता हूं कि तू एक आबला है जिसको आखिर फूट जाना है। गरज गर्दा हो बादे सुबह का ही की तरह, लेकिन शहर की आरजू में शब का दामन थामता हूं जब ये लड़का पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो। ये लड़का पूछता है तो मैं झल्ला के कहता हूं वो आशुफ्ता मिजाज अंदोह परवर इस्तिराब आसा जिसे तुम पूछते रहते हो कब का मर चुका जालिम। उसे खुद अपने हाथों से कफन देकर फरेबों का उसी की आरजुओं की लहद में फेंक आया हूं। मैं इस लड़के से कहता हूं वो शोला मर चुका जिसने कभी चाहा था एक खाचा के आलम फूक डालेगा। ये लड़का मुस्कुराता है, ये आहिस्ता से कहता है ये किस्बो इफ्तिरा है, झूठ है, देखो देखो मैं जिंदा हूं। तो साहब ये नज्म थी जो इन्हीं ने इस फनकार ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े फनकार को सुना, महफिल लूट ली थी। एक बार फिर ओवर टू दिस फनकार जी। बहुत शुक्रिया दानिश इकबाल साहब, आपकी सलाहियत और लियाकत के आगे हम जैसे लोग सरनिगूं ही रहते हैं। ये नज़्म अख्तरुल ईमान की एक और इसका उन्वान है बाज़ आमद और एक मुंताज यानी मोन्टाज। इसमें मुख्तलिफ सीन्स, मुख्तलिफ मंज़रों को बेरब्त पेश किया गया है, लेकिन उनके अंदर एक शिराजा ऐसा है जो उनको आपस में गूंधे हुए है। और बाज़ आमद यानी हिंदी में पुनरागमन। आप अपना वतन, अपना इलाका, अपना घर छोड़कर ज़िंदगी की तलाश में, रोज़ी रोटी की तलाश में, अपनी एम्बिशंस, अपनी ख्वाहिशों की तकमील की तलाश में छोड़ के जाते हैं और आप इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आपका कभी कोई वतन होता था। लेकिन एक मोड़, एक मरहला ऐसा आता है कि आपको अचानक उसकी याद आती है और उसका ख्याल, और इस कदर कि आप वापस जाते हैं और सब कुछ जैसे वापस पलट आता है। सारा वक्त तितलियां नाचती हैं, फूल से फूल पे यूं जाती हैं, जैसे एक बात है जो कान में कहनी है खामोशी से, और हर फूल हंसा पड़ता है सुनकर ये बात। धूप में तेजी नहीं, ऐसे आता है हर एक झोंका हवा का, जैसे दस्ते शफकत है बड़ी उम्र की महबूबा का, और मेरे शानों को इस तरह हिला जाता है जैसे मैं नींद में हूं। औरतें चरखे लिए बैठी हैं, कुछ कपास ओटती हैं, कुछ सिलाई के किसी काम में मसरूफ हैं, यूं जैसे ये काम है दरअसल हर एक शय की असास। एक से एक चुहल करती है, कोई कहती है मेरी चूड़ियां खनकी तो खखारी मेरी सास, कोई कहती है भरी चांदनी आती नहीं रास। रात की बात सुनाती है कोई हंस हंस कर, बात की बात सुनाती है कोई हंस हंस कर। लज्जते वस्ल है आजार, कोई कहती है मैं तो बन जाती हूं बीमार, कोई कहती है मैं भी घुस आता हूं इस शीश महल में, देखो सब हंसी रोक के कहती हैं निकालो इसको। एक परिंदा किसी एक पेड़ की टहनी पे चहकता है कहीं, एक गाता हुआ यूं जाता है धरती से फलक की जानिब, पूरी कुव्वत से कोई गेंद उछाले जैसे। एक फुदकता है सरे शाख पे जिस तरह कोई आमदे फसले बहारी की खुशी में नाचे। गोंदनी
बोझ से अपने ही झुकी पड़ती है, नाजनी जैसे है कोई ये भरी महफिल में, और कल हाथ हुए हैं पीले। कोयलें कूकती हैं, जामुने पक्की हैं, आमों पे बहार आई है, अरगनू बजता है यकजाई का। नीम के पेड़ों में झूले हैं जिधर देखो उधर, सावनी गाती हैं सब लड़कियां आवाज मिलाकर हर सू, वाह, और इस आवाज से गूंज उठती है बस्ती सारी। मैं कभी एक कभी दूसरे झूले के करीब जाता हूं, एक ही कम है वही चेहरा नहीं। आखिरश पूछ ही लेता हूं किसी से पढ़कर, क्यों हटाई अब तक? खिलखिला पड़ती हैं सब लड़कियां सुनकर ये नाम, लो ये सपने में है। एक कहती है बावली सपना नहीं, शहर से आए हैं अभी। दूसरी टोकती है, बात से बात निकल चलती है, ठाठ की आई थी बारात, चमेली ने कहा। बैंड बाजा भी था, दीपा बोली, और दुल्हन पे हुआ कितना बखेर। कुछ न कुछ कहती रहीं सभी मगर, कुछ न कुछ कहती रहीं सभी मगर, मैंने सिर्फ इतना पूछा, वो नदी बहती है अब भी कि नहीं, जिससे वाबस्ता हैं हम और ये बस्ती सारी। क्यों नहीं बहती? चमेली ने कहा। और वो बरगद का घना पेड़ किनारे उसके, वो भी कायम है अभी तक यूं ही, वादा करके जो हबीबा नहीं आती थी कभी, आंखें धोता था नदी में जाकर, और बरगद की घनी छांव में सो जाता था। माहो साल आते चले जाते हैं, फसल पक जाती है, कट जाती है, कोई रोता नहीं इस मौके पर। हल्का दर हल्का न आहन को तपा कर ढालें, कोई जंजीर ना हो, जीस्त दर जीस्त का ये सिलसिला बाकी न रहे। वाह 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 वाह। भीड़ है बच्चों की छोटी सी गली में देखो, एक ने गेंद जो फेंकी तो लगी आके मुझे, मैंने जा पकड़ा उसे, देखी हुई सूरत थी। किसका है? मैंने किसी से पूछा। ये हबीबा का है, रमजानी कसाई बोला। यहाँ कसाई वक्त का अलामिया है, अलामत है, सिंबल है। ये हबीबा का है, रमजानी कसाई बोला। भोली सूरत पे हंसी आ गई उसकी मुझको, वो भी हंसने लगा। हम दोनों यूं ही हंसते रहे, देर तक हंसते रहे। तितलियां नाचती हैं, फूल से फूल पे यूं जाती हैं, जैसे एक बात है जो कान में कहनी है खामोशी से, और हर फूल हंसा पड़ता है सुनकर ये बात। वाह शुक्रिया। वाह 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 वाह। कितनी खूबसूरत नज्म और उसकी इतनी खूबसूरत पेशकश। और मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे तवज्जो दें कि क्या ये जो तरसील हुई एक मुकम्मल जिंदगी इसमें थी। एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां थीं, और इसकी जो पेचीदगियां थीं वो सब आप तक पहुंची। क्या ये गजल से मुमकिन था? क्या ये गजल से मुमकिन था? यकीनन नहीं था। गजल बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन जो नज्म की तवानाई है और जो उसकी शिद्दत है और जो उसका एक इज्तिमाई इम्पैक्ट है, मैं समझता हूँ कि हमको देवेश जैसे लोगों की ज़रूरत है इसको समझने के लिए। वैसे देवेश की बातों से आज एक और बात भी पता चली कि ज़रूर इसके पीछे कुछ हो गया। बड़ी उम्र की महबूबा इस नज्म में था, और उसमें भी वो कैसर उनसे कहती थी बहुत छोटे हो तुम, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो खैर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीएचडी के मज़ामीन ढूंढ रहे हैं, तो उनको हमने ये दे दिया। आप चाहें तो अलग से पेमेंट हमको कर सकते हैं इस चीज़ का, कि देखिए इसके अंदर कई चीज़ें, दो हवाले मिल गए हैं बहुत खूबसूरत से। चलिए अब एक बार फिर हम ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब की जानिब आना चाहेंगे, और उनको और आप सबको याद दिलाना चाहेंगे कि जो उर्दू की तहजीब है उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से भी हमारे मुल्क की रहा है। ख़ासतौर से जो गायकी की ट्रेडिशन है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, उसका इतना ज़्यादा असर गज़ल गायकी पे हुआ है कि अभी महाराष्ट्र के बहुत से स्कॉलर्स गज़ल को शास्त्रीय संगीत की कैटेगरी में
रखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी गज़लों का कंपोजिशन और पेशकश जितने क्लासिकी अंदाज से की गई है हमारे पंडितों की जानिब से, उस्तादों की जानिब से, ये मेहरबानी किसी और फॉर्मेट या किसी और ज़बान की किसी और फॉर्मेट को नहीं हासिल हो पाई। इसके साथ साथ जिस तरह से उर्दू तहजीब का रक़्स के साथ एक ताल्लुक़ रहा है, और आज कथक माना जाता है कि वो उर्दू तहजीब का परवरदा है, और उर्दू तहजीब से मुताल्लिक़ जितनी खूबसूरत तरीन पेशकशें आपको बॉलीवुड में नज़र आती हैं, उसमें इन दोनों चीज़ों का बहुत ही हसीन इम्तिजाज मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए इस अहम पहलू की जानिब मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी अगर कुछ रोशनी डाल सकें तो मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि अदब को हम फाइन आर्ट्स कहते हैं। जो हमारे फाइन आर्ट्स में सबसे फाइनेस्ट है वो अदब है, लिटरेचर है। हम उसमें रक़्स को, सुरूद को, मतलब ये डांस है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है और ये फ़न इमारत साज़ी, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें शायरी है। लेकिन अभी 2-3 बातें आपकी गुफ्तगू से मालूम हुई। मैं चाहता हूँ कि सामईन तक वो बातें पहुँचे कि उर्दू तहज़ीब है क्या और तहज़ीब ने कितने रंग दिखाए हैं हिंदुस्तान के। अब ये देखिए, मैं फ़राग गोरखपुरी का अगर वो शेर पढ़ूँ कि किस तरह से तहज़ीब बनती है और इस तहज़ीब को हमारी ज़बानें कैसे लेके चलती हैं। फ़राग गोरखपुरी ने कहा है कि सरज़मीने हिंद पर तहज़ीब अक़वाम आलम के फ़िराक़। अब ज़रा देखिए कि फ़िराक़ ने कितनी खूबसूरती से, अभी आपने बात कही कि क्या गज़ल में मुमकिन है या नज़्म में मुमकिन है, ये डिबेटेबल है, इस पे बहस की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो गज़ल कह सकती है वो मेरे ख़्याल से नज़्म नहीं कह सकती। अब मैं बात करता हूँ इस पे पूरा 3 दिन का एक सेमिनार, लेकिन मैं 3 मिनट में बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल गर्मा गर्म सेमिनार। इसी चीज़ को कि फ़राक़ ने सदियों की तारीख को, हिंदुस्तान की सदियों की तारीख को सिर्फ 2 पंक्तियों में, 2 मिसरे में, एक शेर में समेट दिया है कि सरज़मीने हिंद पे अक़वामे आलम के फ़िराक़ काफ़िले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान कैसे बना है कि कभी आर्य आए और न जाने कितनी कौमें आई, तब जाकर के हिंदुस्तान का एक रंग बना। और जब हिंदुस्तान का एक रंग बनता है तो मैंने कहा वो रंग है कि उसने इंसान को ढूंढा। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि जहले खरद ने दिन ये दिखाए, जहले खरद ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। अब बताइए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। क्या ये नज़्म कह सकती है? एक मिसरे में जो बात गजल कह सकती है, और यही इंसानियत की तलाश मैं जो है। ऐसे नज़्म के बहुत से मिसरे सुना सकता हूँ, लेकिन मौजू बदल जाएगा। लेकिन अब मैं हिंदुस्तान की तहजीब को दिखाना चाहता हूँ। दक्कन से लेकर के कलकत्ते तक चले जाएं, बनारस तक चले जाएं। मैं बनारस से शुरू करता हूँ। अब ये देखिए, बनारस में अब एक बात रखिए, फिर ये शेर समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की धरती में 2 पवित्र स्थान हैं। एक है काशी और एक है मथुरा। काशी को हम कहते हैं कि इबादत की जगह है और मथुरा को कहते हैं कि मोहब्बत की जगह है। अच्छा, ठीक इसी तरह से अरब में 2 मकामात हैं, एक है मक्का और एक है मदीना। मक्का के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ इबादत की जगह है, और मदीना के बारे में कहा जाता है सिर्फ मोहब्बत की जगह है। अच्छा, अब वो हिंदुस्तान की धरती से एक मुसलमान उठता है और उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है प्रॉफेट मोहम्मद तक, लेकिन वो काशी और मथुरा के हवाले से पहुंचता है और ये कहता है कि सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, घर में स्नान करें सर्व खुदा ने, गोकल जाके जमुना पे नहाना भी है तूले अमल। ये पूरी आप वो कसीदा पढ़िए, ये प्रॉफेट मोहम्मद की शान में है। और वो कहाँ से शुरू करते हैं? काशी से, मथुरा से, तो इबादत की सरजमीन पे पहुंचते हैं, मोहब्बत की सरजमीन पे पहुंचते हैं। और इसी हिंद इस्लामी रवायत को, हिंद ईरानी रवायत को अगर दक्कन में देखें तो आपको हैरत अंगेज खबर मिलेगी कि खबरे तहय्युर इश्क से न जनू रही न परी रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो घड़ी याद करते हैं। कौन सी घड़ी? कि जिसमें मोहब्बत का दर्स लिया। तो पूरी आप ये नज़्म पढ़िए। लेकिन ये एक रंग आपको मैंने दिखाया, एक और रंग देखिए दक्कन का। कहते हैं कि ज़बान तहजीब को लेकर चलती है। हिंदुस्तान का शायर उर्दू में बात कर रहा है तो हिंदुस्तान की उन तलमीहात को, उन सिमलीज को और उन मेटाफर को लेकर चलेगा।
اب دیکھیے کس طرح سے اور اتنی خوبصورتی سے یہ اردو والے اور شاعر ہی کہہ سکتے ہیں. یہ ملی جلی سنسکرتی والی بات میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. اب محبوب کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ تو آج کا بڑا مشکل زمانہ ہے. کسی محبوب کو اگر دیر تک دیکھ لو تو پتہ نہیں کون سا کیس ہو جائے. نہیں سپریم کورٹ کے آرڈر ہے نا. لیکن شاعر کتنا اچھا راستہ نکالتا ہے. جو بھی آپ کہنے والے ہیں سنبھل کے کہیے, بہت سنبھل کے, اور ایسا سنبھل کے کہوں گا کہ دیر تک آپ بھی محبوب کی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ دکن کا شاعر کہتا ہے کہ بت خانہ نئے تیرے, کہتا ہے اپنے محبوب کو, اے محبوب تمہاری آنکھیں ہیں وہ بت خانہ ہے, بت خانہ اور ہور بت نین کی پتلیاں, اور تمہاری آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس مندر میں مورت کی طرح ہیں. اس کے بعد کہتا ہے, اس کے بعد کیا, ہور بت نین کی پتلیاں مجھ نین ہے پجاری پوجا اداؤ مارا. یعنی میری آنکھیں تو پجاری ہیں تو پوجا کرنا میرا فرض ہے, پوجا کرنے سے تم روک نہیں سکتے. تو یہ دیکھیے ہندوستان کی اس پرمپرا کو کس طرح سے شاعر دکھاتا ہے. اگر اسی کو چلیں کہ میر کے زمانے میں, آبرو کے زمانے میں, غالب کے زمانے میں, کلکتہ تک چلے جائیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیریس لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور عوامی ادب کو پڑھتے ہوئے ذرا شرم محسوس کرتے ہیں. لیکن کلکتہ کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, کلکتیا زبان میں, شاید کچھ کلکتہ کے لوگ بیٹھے ہوں, نہیں تو وہاں تک بات پہنچ جائے گی. وہاں مذکر مؤنث کا استعمال نہیں. عورت کو کہیں گے کہاں جا رہا ہے, اور مرد کے کہیں گے کہاں جا رہی ہو, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کلکتہ میں. اور وہ زے کو ز کبھی بول نہیں سکتے, زندگی بولیں. شعر سنیے, میرا زندگی تو اداس ہے, میرا زندگی تو اداس ہے, نہ کھٹاس ہے نہ مٹھاس ہے, نہ کوئی آس ہے نہ کوئی پاس ہے, میرا زندگی تو اداس ہے. اب ذرا آپ یہ دیکھو, یہ عوامی زبان ہے اور یہ شاعری کی زبان ہے, لیکن یہ کھٹاس اور مٹھاس اس نے پوری زندگی کے نقشے کو کھینچ دیا. اسی کو کہتے ہیں غزلیہ شاعری. نظم میں ممکن نہیں ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے دو چیزوں کا حوالہ دیا, اور ایک تو بتایا آپ نے کہ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق قافلے آتے گئے, ہندوستان بنتا گیا. تو جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک قافلے کی مرہون منت ہے, جس کو آج ہم اردو تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں. تو یاد کیجئے 1854 کا وہ دور جب واجد علی شاہ صاحب کو معزول کیا گیا, ان کو جلا وطن کیا گیا, اور اس سے پہلے بہت سے قافلے دلی سے اجڑ کے, جس میں میر بھی شامل ہیں, جس میں امیر مینائی سے لے کے داغ سے لے کے ہمارے سارے شعراء اور ہمارے سارے فنکار, جب دلی اجڑ گئی, آگرہ اجڑ گیا, نارتھ انڈیا میں کچھ نہیں بچا, تو یہ سب لکھنؤ کی جانب گئے. لکھنؤ ایک گوشہ عافیت تھا, وہاں پہ تقریباً 100 سال کے عرصے میں, بلکہ 80 سال کے عرصے میں ایک تہذیب پنپی, کیونکہ وہ تھوڑا پیچھے کی طرف تھا. وہاں پہ اس طرح سے انویژنز نہیں ہوئے جیسے دلی میں ہو رہے تھے, اور وہاں پہ ایک تہذیب پروان چڑھی جس میں رقص اور موسیقی اور خاص طور سے گائکی پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی, بہت اسے اونچا مقام ملا. اور جب واجد علی شاہ معزول ہو کے اسی کلکتہ پہنچ گئے جس کلکتہ کا ابھی آپ ذکر سن رہے تھے, تو ان کے ساتھ ساتھ فنکاروں اور شاعروں اور جو طوائفوں اور جتنے بھی سازندے لوگ تھے وہ سب اس کے ساتھ پہنچے. اور کلکتہ میں جو آرٹ کلچر ہے اس زمانے میں, وہاں پہ راجدھانی تھی انگریزوں کی, اور اتفاق ہے کہ وہی دور ہے جب فلمیں شروع ہو رہی تھیں, جب ریکارڈڈ میوزک شروع ہو رہا تھا. نتیجے میں ہندوستان کے آج جو آپ فلموں کو دیکھتے ہیں, پارسی تھیٹر کو دیکھتے ہیں, اس سب کا جو خمیر ہے وہ اسی کلکتے میں پروان چڑھا, وہیں ابھرا. اور اس زمانے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کچھ قافلے نارتھ انڈیا سے پنجاب کی جانب گئے, کچھ حیدرآباد کی جانب گئے, کیونکہ وہاں پہ امپلائمنٹ ہوتا تھا, بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی تھی. تو ہمارے پروفیسر چندر شیکھر کا جو خاندان ہے وہ اتر پردیش سے پنجاب پہنچا. جی 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 تو پنجاب پہنچا, اور پنجاب میں کیا ہوا آگے آپ کو پروفیسر چندر شیکھر بتائیں گے. جی, اس سے قبل ہمارے بھائی خواجہ کرام ابھی بنارس کا ذکر کر رہے ہیں. غالب جب اپنی پینشن دوبارہ کس طرح بحال کرانے کے لیے کلکتہ سے واپس آ رہے تھے
तो फारसी में एक शेर उन्होंने लिखा, उसका मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ। अगर एक लम्हे के लिए भी तमानियत तुम्हें हासिल हो, अगर एक लम्हे के लिए तमानियत तुम्हें हासिल हो, तो काशी से काशान तक का सफर एक पल का है। वाह वाह, काशी से काशान काशान तक का सफर एक- एक पल का है। हाँ, काशान एक बड़ा खूबसूरत शहर है। गुलाब का अरक वहाँ निकाला जाता है। जैसे सिंभावली के पास जाएं तो गुड़ बनाने की खुशबू आती है, ऐसे वहाँ 30 किलोमीटर दूर तक मई के महीने में गुलाब के अरक निकालने की खुशबू फैलती है। तो काशी से काशान तक ये शायर का तस्वुर जरूर है, लेकिन सोचिए कि उन तस्वुरात में शायर कहाँ से कहाँ घूम जाता है। गजल और नज्म के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट पेश निहादी 3 रोज़ा सेमिनार के लिए हुआ, इंशाल्लाह अगर भाई ख्वाजा ने मदू किया तो शिरकत करें। जी, उस पे ये भी बात होगी कि मिर्जा गालिब ने जो चराग़ दर लिखी थी वो गजल में लिखी थी गालिबन, उसे हम मसनवी को नज़मी कहेंगे। ये भी सेमिनार में शामिल होगा। जी। मैं चाह रहा था कि पाइख्ताम को पहुंच रहा है भाई शम्स के एक मेरे वालिद का एक खाका है, उस परिवश का क्या कहिए। उस परिवश का क्या कहिए। जी। 14 अगस्त 1947 को अमृतसर के स्टेशन पर हस्बे मामूल वो 4 दोस्त, जिनमें से 3 सहाफ़ी थे, तमाम उस दौर की कत्ल गारत के बावजूद अपने रोज़ाना का जो बाकायदगी से स्टेशन पे जाकर आते जाते मुसाफिरों को देखना, उनसे सलाम अलैकुम कहना, आदाब अर्ज़ करना। आदाब अर्ज़ पे मुझे याद आया, देखिए उर्दू में नए नए लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हुए कि अगर एक गैर मुस्लिम मुसलमान से बातचीत करे तो आदाब अर्ज़ है, अदरवाइज अस्सलाम अलैकुम है। लखनऊ की बात हो रही थी, स्वीप्रेस को भी मेहतरानी कहा गया। में अफर्मेटिव है, यानी बड़ा, मेहतर ज्यादा बड़ा। ये भी उर्दू की लफ्जी साख्तियात का एक नमूना है। तो जब वहाँ स्टेशन पर बैठे थे, 14 अगस्त की रात 11 बजने आए, कुछ देर बाद पता चला कि उर्दू में लिखा हुआ लफ्ज़ अमृतसर बकौल वालिद के कुछ कजो माकूज जिसे नागरी कहा गया, उसमें लिख दिया गया था। तो वालिद के मुंह से निकला कि क्या उर्दू को भी लाहौर अगवा करके ले गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मगर ऐसा हुआ नहीं, जिसकी मिसाल आज हम यहाँ बैठे हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आज भी उर्दू की या पूरी तहजीब की जो लिंग्वा फ्रैंका है, अगर आप उसे ना लिखें तो ये मुश्किल है बताना कि कौन सी ज़बान है। कई अल्फाज हर इलाके में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो खुद लोगों को नहीं पता होता कि उनकी बनावट कैसे बनी। आप सब लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टखना। टखना, जी। खे इंडिक लैंग्वेजेस की साउंड नहीं है, लेकिन टे है, खे नहीं है, नून है। हमने वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए और वो भी बनाए जिनकी सौतियात भी आर्जी तौर पर दी गई। वाह वाह। तो उर्दू में जितनी समाई तहजीबी रवायात की वजह से है, उसके ना सिर्फ जिंदा रहने बल्कि आगे बढ़ते रहने। अखबारात को देखिए, अगर आप जहानुमा देखें 19वीं सेंचुरी में छपने वाला और आज का इंकलाब देखें, तो उर्दू का वो तकावली साफ़ी मंजरनामा आपके सामने आता है कि कितने अल्फाज बदल गए, कितने अल्फाज ऐसे हैं जिनकी कॉनोटेशंस बदल गई। मैं एक मिसरा पढ़ूंगा। जी इरशाद, मुझे जी।
हो सकता है आप लोग में से कई लोग ना पढ़े हों, फ़ानी बदायूनी मेरा सबसे अजीज शायर है। बहुत अरसे पहले आपने नाम सुना होगा शांति हीरानंद का, जो जिंदगी भर सिर्फ बेगम अख्तर की ही आवाज़ में गाती रहीं। उन्होंने अपनी कोई टोन नहीं क्रिएट की। उनके साथ फ़ानी के ऊपर 3 प्रोग्राम टीवी पे दिए थे। मैं सिर्फ उनका एक मिसरा पढ़ता हूं। जी इरशाद। एक फसाना सुन गए, एक कह गए, एक फसाना सुन गए, एक एक कह कह गए, गए, मैं जो रोया मुस्कुरा कर रह गए, मैं जो रोया मुस्कुरा कर रह गए, या तेरे मोहताज हैं ए खूने दिल, या उन्हीं आंखों से दरिया बह गए। वाह 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 वाह। और एक लास्ट का शेर, चूंकि भाई दानिश ने बताया कि मेरे अजदाद मुरादाबाद से होके रंजीत सिंह के दरबार में पहुंच गए, तो मेरे वालिद का एक शेर है और काश्तों का इन्होंने जिक्र किया। मेरे अजदाद ने मेरे अपने लहू अजदाद ने अपने लहू से, जी, उसको सींचा है, मेरे अजदाद ने अपने लहू लहू से से उसको सींचा है। तसव्वुर गुलशन उर्दू है, खूने दिल भी काम आए। वाह, तसव्वुर आपके वालिद का तखल्लुस था। जी तसव्वुर। जी रवायात बढ़ती हैं, तहजीबें गनी होती हैं, जबान उनमें एक इंस्ट्रूमेंट है। जबान किसी का विरसा नहीं होती, ना किसी दीनो मजहब, ना किसी कौम का। और अगर वो विरसे के तौर पर रह जाएं तो लोग उसको बेच दें। अगर वो विरसे के तौर पर ज़मीन या इमारत की शक्ल में हो तो लोग उसे बेच दें। मुख्तलिफ मुंह से निकलने वाली अदाएं लफ्ज़ बनाती हैं। और लफ्ज़ के ऊपर सिर्फ एक आखिरी बात, अब्दुल वाहिद बिलगरामी की एक किताब है हक़ाइक़ हिंदी, उसका शुरू का फॉरवर्ड पढ़िए। उसमें लिखा है, लफ्ज़ एक दरिया है, उसके मानी हम तय कर देते हैं, उसका कोई बेस नहीं है, आप उसे डालते जाइए, वो समाई जाती रहेगी। ये हमारी दकियानूसी है कि हम लफ्ज़ों के सिर्फ 4 या 5 मानी जानते हैं। लफ्ज़ों का अथा समूह एक लफ्ज़, उसी तरह दरिया में जैसी कितनी नदियां आके गिरती हैं, उसका पानी दरिया के उधर नहीं जाता। अगर शक हो तो लोग कराची चले जाएं और जाके देखें तो ऐसा लगता है कि दरिया का उठाव ऊपर है, शहर नीचे है। शुरू में कोई आदमी जाएगा क्लिफ्टन के वहां पर तो ऐसा लगेगा कि पानी अंदर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन दरिया अपने अंदर समाई रखता है, चाहे वो नदी की हो या नाले की। तो लफ्ज़ का वही हाल है, जबान का वही हाल है, उर्दू का वही हाल। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो साहब बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही है और जो गज़ल और नज़्म वाला मसला है वो भी हल होना है, लेकिन इस तरफ से इशारा है कि हमारा वक्त पूरा हो चुका है। और इस वजह से मैं एक बार फिर से अपने सभी शुरका का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत आप सबकी कि इतने सब्र और सुकून के साथ इतनी गाढ़ी गाढ़ी भारी भरकम बातों का आपने सुना। शुरका से ज़्यादा हाजरीन तारीफ के मुस्तहिक हैं, तो आप लोग क्या इनके लिए ताली बजाएंगे छोटी सी? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब, आपने इस प्रोग्राम को ज़िंदा रखा। और जो प्रोग्राम की कामयाबी होती है वो इसमें होती है कि लोग कितना इन्वॉल्व हैं। जाहिर है कि ये एक प्रोग्राम था जो थीम पेविलियन में हमने मुनक़िद किया, इसमें आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ आपने इसको मॉडरेट भी किया और साथ ही साथ अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने बड़े भाई प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, इनकी शफ़क़तों के बारे में मैं शायद आप लोग के बीच में ना कह सकूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो मेरे कहने पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब,
मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब मैंने इनसे वक्त लिया ये इसके लिए तैयार हो गए और इन्होंने कहा कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हूँगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। आप सबसे सीनियर आदमी हमारे बीच में थे और मुझे ऐसे सीनियर आदमी की ज़रूरत थी कि जो इस प्रोग्राम में अपने तजुर्बे को और अपने एहसासात को हमारे सामने रख सके। जो मल्टीलिंगुअल कल्चर की बात हो रही थी उसकी नुमाइंदगी भी आप कर रहे थे और हमें उसी तरह सब समझा रहे थे जैसे हम समझना चाहते थे। मैं अपने दोस्त देवेश जो मेरी तरह बहुत कम जगह जाते हैं, आमतौर पर लोग उनको देखा नहीं होगा आपने, लेकिन ये मेरे बड़े करीबी दोस्तों में से रहे हैं। मेरे कहने पर बहुत मज़ीद नहीं आ पाऊँगा, मुझे कहीं जाना है, मैंने कहा मुझे कुछ सुनना नहीं है, आपको आना है, और ये आए और आप लोग इनकी आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मैं देवेश का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के लिए हमारे सरप्रस्त प्रोफेसर मराठे साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये मौका फराहम किया, हमारे डायरेक्टर साहब युवराज मलिक साहब, उन्होंने हमें मेरी हौसला अफजाई की इस तरह प्रोग्राम के लिए, और जो चीफ एडिटर मोहतरमा नीरा जैन साहबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, इन्होंने भी मुझे हर वक्त मुझे हेल्प किया। और मैं तमाम जो सामीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम एक जिंदा प्रोग्राम की शक्ल में उभरा। और बकिया जो डिबेट है नज़्म और गज़ल के सिलसिले में ये एकेडमिशियन जाने, हमने जो देना था। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।